Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum guys. Today I'm back with my new video and it's very interesting and creative video. As you were seeing the title on the board, daily use vocabulary words. So I have started my video late. It's been late because of my exams and I was also not feeling well. That's why I couldn't make video. But today I'm free, so that's why I'm making a video. And before starting the video, as usual, I would like to say that subscribe to my channel, like the video and comment in the comment section and share it with your family and friends. Okay, so let's start the video. Yes, so we are going to study daily use of vocabulary words. Means to say that daily use vocabulary words. Vocabulary is a most important element for English. अगर आपके पास words नहीं होंगे, so I think so English बोलना ही बेकार है. As much as there will be modernization in your vocabulary, the more greater your English will look. मतलब ये कि vocabulary जो है हमारी English का most important element है. अगर आपके पास words नहीं होंगे तो English कैसे बोलेंगे? Last video हमने बनाई थी how to speak English confidently. लेकिन English बोलने के लिए vocabulary भी चाहिए. So हम कुछ हमारी जो डेली लाइफ है इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश के बारे में हमने कभी फोकस ही नहीं किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दोज वर्ड्स. हम उनके बारे में जो है वो आज लर्न करेंगे उनको, जो हमारी डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. और वोकैबुलरी वर्ड्स हम स्टडी करेंगे, बट उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. दैट इज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जितने फ्लुएंसी होगी ना आपके वर्ड्स में उतने ज़्यादा आपके वर्ड्स अट्रैक्टिव लगेंगे. सो प्रोनाउंसिएशन जो है टू टाइप्स की होती है. फर्स्टली अमेरिकन, सेकेंडली ब्रिटिश. इंटरनेशनली विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, दैट इज ब्रिटिश एक्सेंट. सो हम इनको आज ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज स्टडी करेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद सम इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. सो जो हम फर्स्ट वर्ड स्टडी करने लगे हैं, मैंने सोचा फर्स्टली वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर रिलीजन. सो जो फर्स्ट वर्ड है वो है जायनमाज, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और थिंग ऑफ आवर डेली लाइफ. So first one is जायनमाज. So जायनमाज की जो इंग्लिश है very easy, very आप सबको I think so पता ही होगी, but I would like to start from it, and that is prayer rug. Prayer rug. Prayer यानी नमाज है, rug मतलब जायनमाज. So this was the first one and it is very easy to pronounce. And that is prayer rug. Very easy. So we have a very good start. And the second word is tasbih. It's also a religious element, and that is tasbih. It is very important for Muslims. And tasbih, its English is rosary. What's the word? Rosary. Is this word? Here is S. We are finding here S. But in pronunciation we say it like that. Rosary. It seems to be Z. But here's the word S. This thing to be noted is rosary. Again I will speak. Listen carefully. Rosary. So this is its UK pronunciation, means the British pronunciation, rosary, and it's English. I think so that most of the people who are watching this video don't know the meaning. Okay. Now the third word we are going to discuss is very funny, you can say. And the third word is, I am speaking it with very much courage, and that is lota. Okay, so it's a very simple word. And इसकी English तो थी ना, मैंने 3 क्लास में पढ़ी थी, but the pronunciation I have studied in my last class. अभी pronunciation कुछ टाइम पहले ही मैंने इसकी जो है वो स्टडी की. So I just wanted to share with all of you. And the word is, पहले मैं word लिखती हूँ और जो पहले मैं इसको प्रोनाउंस करती थी ना वो बताती हूँ. मैं इसको प्रोनाउंस करती थी पहले एविड.
EWER ever. But a time before, I think so, it's about 1 year ago, I just saw about the pronunciation of this, and the correct pronunciation is your. You-er. Again, hear it carefully. The correct pronunciation is your. Your. Okay? Your. Your is the word, and it is British pronunciation. Let's study the fourth word. The fourth word is wazoo. Wazoo is very important, and its English means its translation is also too easy, and that is ablution. Ablution. Ablution means wazoo. Okay, its pronunciation is also very simple. Ablution. Okay, it's UK pronunciation. The next word we're going to learn is that the chorna. Okay, I think so. I have discussed in my previous video also about it. The word is ring. Its English translation is ring. The W is silent over here. Okay, and the words which are silent, जो के words silent होते हैं, which don't make a sound. इनके पीछे भी काफ़ी जो है long history है, typical history. So इसको अगर हमें learn करना है, so we need too much time. So I'm not going to tell you that. So the word is ring. What's to pronounce? Ring. So the next word that we're going to learn is very simple, very easy. All of you know, I think so child do know, Kenji. Kenji means Caesar. Caesar. All of you used to speak Caesar, right? आप में से I think so 95% of the people said Caesar. Maybe Caesar ही कह रही, but Caesar. Okay, the word है Caesars. मोस्टली पर्सन इसको पढ़ते हैं सीजर, बट हम इसको सीजर्स कहते क्यों हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने सीजर देखी होगी. यू मे हैव सीन द सीजर. आपने सीजर देखी होगी. मैंने यहाँ पे सीजर बनाई है. मुझे ड्राइंग नहीं आती है. एज आई ट्राइड सो आई मेड इट. सो आप यू कैन लुक हियर. दिस इज़ द सीजर. ये मैंने यहाँ पे सीजर बनाई है. बट हम इसको सीजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ये टू साइड्स, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड. So, इस वजह से हम इसको सीजर्स कहते हैं. और सिर्फ ये एक चीज़ के पीछे हिस्ट्री नहीं है. ट्राउज़र नहीं कहते, इसको ट्राउज़र्स कहते हैं. एक ट्राउज़र है अगर आपके पास, तो हम उसको भी ट्राउज़र्स कहेंगे. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी एक ट्राउज़र बनाया, पर हम उसको ट्राउज़र नहीं कहेंगे, ट्राउज़र्स कहेंगे. सो हमने अभी डिस्कशन कर ली सीजर्स पे. नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं. ओके, अब जो हमने नेक्स्ट वर्ड लिया है वो है कोरिएंडर. कोरिएंडर की उर्दू होती है धनिया. धनिया जो है एक प्लांट वी यूज़ इन द किचन. ये धनिया जो है दिस वी कैन इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल. ओके, कोरिएंडर. इसकी प्रोनाउंसिएशन जस्ट लिसन इट केयरफुली. कोरिएंडर. अगेन आई वुड स्पीक, लिसन केयरफुली. कोरिएंडर. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द वर्ड कोरिएंडर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज व्हील. ये किसकी इंग्लिश है? किस वर्ड का मतलब है व्हील? व्हील, ये जो वर्ड मैंने ढूंढा है ये है हिजाब की इंग्लिश. हिजाब, आई गेट द आइडिया कि एक दिन मेरी सिस्टर जो थी वो हिजाब कर रही थी. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट इस हिजाब की इंग्लिश क्या है. एंड इट्स अबाउट अ वेरी ओल्ड, यस इट्स वेरी ओल्ड, इट्स वेरी ओल्ड इंसिडेंट. हाँ, ये बहुत पुराना वाक़या है. दैट शी वाज डूइंग हिजाब एंड आई कुडंट गेट द पॉइंट कि हिजाब की इंग्लिश क्या है. एट दैट टाइम आई न्यू दैट हिजाब की इंग्लिश व्हील है. इसको प्रोनाउंस भी इसी तरह करेंगे, व्हील. सिंपल, दैट्स द वर्ड इज व्हील. ओके, सो द वर्ड इज व्हील. इसकी प्रोनाउंसिएशन अगेन लिसन इट केयरफुली. इट्स ब्रिटिश एक्सेंट मीन्स यूके प्रोनाउंसिएशन व्हील. व्हील. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो लेट्स मूव. नेक्स्ट जो है हमारे पास 9th वर्ड है बर्तन. और बर्तन की इंग्लिश होती है क्रॉकरी. एज यू हैव सीन द 9th वर्ड इज़ क्रॉकरी. क्रॉकरी मतलब कि बर्तन. और बर्तनों की इसके अलावा जो एक वर्ड है, बल्कि हर वर्ड के बहुत सारे इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं, इसी तरह बर्तनों का एक और वर्ड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, द वर्ड इज़ यूटेंसिल्स. अगेन हियर दैट, यूटेंसिल्स. और यूटेंसिल्स की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ईजी है. और क्रॉकरी की भी बहुत ईजी है. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड. इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी ईजी. नेक्स्ट वर्ड इज तिल.
तिल आप जो सा मर्जी तिल लगा लें, जो आपके माइंड में आ रहा है वही तिल। ओके, सो तिल की इंग्लिश है मोल। मोल, ओके, वेरी इजी। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी। आप ये केमिस्ट्री वाला मोल मत समझिएगा, दैट्स इंग्लिश मोल। मोल, ओके, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट नहीं है, ये है तिल वाला मोल। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वेरी इजी, मोल। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ओके, अब मैंने 11th और 12th वाला वर्ड दोनों एक साथ लिख दिए हैं। फर्स्ट 11th वाला है जमाई लेना, वेरी इजी, यॉन। व्हाट द वर्ड इज यॉन। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को समझ आ गई होगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे इसकी स्पेलिंग्स है वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अगेन सी मैथ, यॉन। ओके, द नेक्स्ट द 12th वर्ड इज बेल्च। बेल्च किसकी इंग्लिश है? बेल्च इंग्लिश है, बेल्च इंग्लिश है डकार लेने की, डकार, डकार लेने की इंग्लिश है बेल्च। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक एडिशनल वर्ड बता देती हूँ, स्नोर। स्नोर खराटे लेना, हर कोई लेता होगा, राइट? खराटे लेना, इंग्लिश ऑफ स्नोर। सो ये भी वैसे मैंने इसके साथ मिलता जुलता मुझे वर्ड लगा, सो मैंने बता दिया। सो अब हम अगले अपने 13th वर्ड की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स मूव। ओके, द नेक्स्ट वर्ड यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज हिकअप्स। हिकअप्स मैच करता है, आप लोगों को शायद समझ आ गई हो, हिचकी। हिचकी, हिकअप्स, कितना मिलता जुलता लफ्ज़ है ना। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हिकअप्स, हिकअप्स, हिकअप्स। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द 14th वर्ड एंड द 14th वर्ड इज ऑल्सो टू ईजी। ओके, द 14th वर्ड इज क्विल्ट। क्विल्ट हम कहते हैं रज़ाई को। रज़ाई इज अ डेकोरेटिव बेडशीट, यू कैन से, सर्दियों में देते हैं ये, है ना। क्विल्ट, लिसन द प्रोनाउंसिएशन केयरफुली, द वर्ड इज क्विल्ट, क्विल्ट। Okay, it's UK pronunciation, quilt. Let's proceed toward the 15th word. Okay, so the 15th word, as you can see on the screen, is fritters. Fritters, आप लोग को शायद पता हो, पकौड़े। पकौड़े, we usually eat in the rainy day. On rainy day, these are usually in our routine. We need to go up to routine when we are to eat fritters. Okay, fritters, easy word. Again, let's see the pronunciation, fritters. फ्रिटर्स जो है बहुत इजी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, और आप सुनिएगा कि इसमें टी को हम डबल ही प्रोनाउंस करते हैं। डबल टी है स्पेलिंग्स में भी, तो इसको प्रोनाउंस करते हुए भी हम डबल टी ही यूज़ करते हैं। अगेन लिसन, फ्रिटर्स, फ्रिटर्स। बस इसको गौर से सुनिएगा, इसमें आप डबल टी ही फाइंड करेंगे। मैं क्विल्ट बोलने लगी थी, फ्रिटर्स। अगेन 16th वर्ड, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इज कुकर। कुकर किसकी इंग्लिश है? आप चाहे प्रेशर कुकर की लगा लें या आप देगचे की लगा लें, व्हाटएवर यू वांट। आई थिंक सो देगचा, जो इसे कहते हैं देगचा, व्हाटएवर वी से, आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड, जो भी इसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, और नहीं पता तो यू कैन आस्क फ्रॉम योर मदर और योर ग्रैंड मदर और एनीवन। देगचा, आई एम राइट, आई थिंक सो। तो एंड इट्स इंग्लिश इज कुकर। बस मैंने इंग्लिश लिख दी है, मुझे उर्दू प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आती। अगेन लिसन द प्रोनाउंसिएशन, कुकर, बहुत इजी प्रोनाउंसिएशन है। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द 17th वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है जुगनू की इंग्लिश। जुगनू मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इसकी लाइट जो है ना, कितने छोटे से होते हैं ना, पर इसकी लाइट के बारे में इलामा इकबाल एक पोएम भी लिखी थी दैट आई लव टू मच, एंड इट्स इंग्लिश इज फायरफ्लाई। वेरी इजी टू स्पीक, फायरफ्लाई। कुछ वर्ड्स हमने ऐसे स्टडी किए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, कुछ हमने ऐसे स्टडी किए हैं जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी। सो अंदर मिक्सड अप वर्ड्स है। ओके, और ये नहीं कि आप सिर्फ हम किचन की चीज़ें ले रहे हैं, हम सिर्फ रिलीजियस चीज़ें ले रहे हैं, या हम सिर्फ बेडरूम की चीज़ें ले रहे हैं, ना हम सिर्फ बर्ड्स या एनिमल्स ले रहे हैं। इस कैटेगरी में सब चीज़ें आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी, ईच थिंग हैव अ लिटिल बिट पार्ट इन दिस वीडियो। ओके, so again listen the pronunciation, firefly. Let's move toward the 18th word. Okay, the next word I have written is console. Console मतलब ताज़ियत। ताज़ियत मतलब ताज़ियत का एग्जैक्ट मीनिंग तो उर्दू में मुझे नहीं आता, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू आई कैन टेल। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के घर कोई फोदगी होती है ना, सो जाके ताज़ियत करते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं कंसोल करना, या आई थिंक सो अयादत। नहीं, अयादत इज़ अ डिफरेंट वर्ड। अयादत कहते कोई बीमार हो तो उसके जाकर हाल चाल पूछना, राइट।
बट ये है कंसोल ताज़ियत वाला, कि जब कोई मर जाता है तो जाके उसकी अफसोस करना, राइट, अफसोस करना, आई फाइंड द वर्ड अफसोस करना, कंसोल. So let's proceed toward the 19th word, and the 19th word I have written is need. Need मतलब गूंदना. Let me speak it correctly. गूंदना, right? सही हो गया ना? गूंदना. मैंने बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ सीखा है. The word is गूंदना. हम कहते हैं ना आटा गूंदना, फ्लोर गूंदना, right? So इसकी इंग्लिश है need. Need इसमें जो है के जो है वो साइलेंट आ रहा है. The word is need. आप इसी तरह देखते हैं नाइफ. नाइफ में भी के एन होता है, बट के इन द नाइफ इज साइलेंट टू. एंड हेयर ऑल्सो इन द नीड के इज टू साइलेंट. सो नीड में के साइलेंट होगा. ओके, नीड. इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ईजी है, नीड. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द 20th वर्ड. एंड हेयर लास्ट एंड द 20th वर्ड इज नेट. नेट का मतलब आप सबको पता होगा, बुनना, राइट? वो जो होता नहीं है, स्वेटर बनाते हैं लोग, वो हम क्या नाम है उसके, सिलाई मशीन के थ्रू ही बनाते हैं, वो बनाते हैं नीडल के साथ. सो उस नीडल के साथ जो हम बनाते हैं ना, उसे कहते हैं नेट. लिसन द प्रोनाउंसिएशन, नेट. के इज ऑल्सो साइलेंट हियर. नेट, नीड. ओके, अब हम, ये हमारा लास्ट वर्ड था. अब हम एक बहुत ही ना, आई वुड जस्ट वांट टू टेल यू, आई हैव दिस नॉलेज एंड वेरी ओल्ड नॉलेज. This is very old knowledge I have, but I want just to share it with all of you. So let's proceed toward that knowledge. Okay, मैंने अब 3 words लिखे हैं, स्क्रीन पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे. फर्स्ट है think. think, अगला है things, अगला है with. यही हम बोलते हैं इन वर्ड्स को, यही इनकी प्रोनाउंसिएशन है. इनके मीनिंग्स आपको पता होंगे, think चीज़ और with साथ. ओके, बट अब इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है वो हमने देखनी है. ओके, यू कैन लुक थिंक. ओके, तो इस पॉइंट पे हमने देखना क्या है. ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना थिंक, ये एक दफ़ा मुझे याद है, मेरी टीचर ने मुझे बताया कि इसको थिंक प्रोनाउंस नहीं करेंगे. सो मैंने कहा फिर क्या प्रोनाउंस करेंगे, तो कहती है इसको सिंग प्रोनाउंस करेंगे. दोबारा सुनिएगा, कहती है इसको सिंग, सिंग प्रोनाउंस करेंगे, सिंग. मुझे बहुत अजीब लगा कि यार ये क्या हुआ. और फिर मैंने कहा थिंग्स को क्या प्रोनाउंस करें, कहती सिंग्स, सिंग्स, सिंग्स. मैंने कहा व्हाट इज दिस टीचर, इज इट रियली अ जोक. मैंने ऐसे ही कहा. और फिर ना मैंने इंग्लिश कार्टून्स और मूवीज़ वगैरह में ये चीज़ नोट की कि जहाँ पे भी TH आ रहा है वो उसको S का साउंड दे रहे हैं. इसी तरह मैंने एक अगले दिन ताकि पूछा, टीचर विद को हम विस कहेंगे फिर, कहती है ऑफ कोर्स. उन्होंने ऐसे इसको प्रोनाउंस किया विस, सिंग, सिंग्स. उसके बाद मैंने इसकी गूगल प्रोनाउंसिएशन चेक की, ये वो भी यही थी. सो फिर मुझे पता चला कि आई वॉज जस्ट लिविंग अ वेरी यूजलेस थाट, कि मेरे दिमाग में बहुत यूजलेस थाट थी कि कैसे ये हो सकता है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल. सिंग, सिंग्स, विस. इन तरह से आप लोग अपने इंग्लिश में ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, अपनी डेली लाइफ में नोटिस कीजिएगा. प्रोनाउंसिएशन यू कैन चेक, द वर्ड इज विस, सिंग्स. ओके, इसको एस का साउंड दे दिया. सो एट दैट टाइम आई नो व्हाट्स द वर्ड सिस, विस. सॉरी, मैंने सिस कह दिया, विस. ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट द नॉलेज and thank you for watching my video. I hope that this video would be much helpful for all of you, and just like the video, subscribe to the channel and pray for me. Just help to grow my channel. And this information I think that you should share to all of your friends and family who just wanted to learn English.